ये बॉक्स बनाया उसके पहले when the price was 1 and 2, can I say that when the price was 1 and 2, can I see over there one very important observation we can note? I am noting one important observation that over there demand is greater than supply. We can observe demand is greater than supply. Or either when the price was 4 and 5, I observe demand is less than supply. I observe demand is less than supply. तो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है when demand is greater than supply, this situation is called scarcity. जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, और जब यहाँ पे 4 and 5 पे देखो प्राइस 4 and 5 था तब डिमांड 4 2 एंड सप्लाई 8 10, तो सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है. ऐसे सिचुएशन को इकोनॉमिक्स में हम लोग सरप्लस बोलते हैं. और यहाँ पे आप देखो व्हेन प्राइस वाज 3, डिमांड वाज इक्वल टू सप्लाई. ऐसे सिचुएशन को इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम बोलते हैं. We call it as equilibrium. So let us now plot those equilibrium, that equilibrium in terms of diagram. So for diagram, let me first plot the axis for you. Y-axis, X-axis, on Y-axis we always measure price, and on X-axis we measure quantity demanded and supplied. So let us plot price 1, 2, 3, 4, 5. Quantity 2, 4, 6, 8, 10. पहले हम प्राइस और डिमांड का प्लॉटिंग करेंगे. When price was 1, I tell you demand was 10. We get 1 point over here. 2 पे 8 था. We got another point over here. 3 पे 6 था. We got third point over here. 4 पे 4 था. Another point, and 5 पे 2 था. We got another point. So we have plotted some points which explains us the relationship between price and demand. तो अभी इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं. सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे, we get one curve. Let us call it as DD. DD is the demand curve, which is sloping downward from left to right. Now, let me plot supply.
when price was 1, supply was 2. We got 1 point. 2, supply was 4. 3, supply was 6. 4, supply was 8. And 5, supply was 10. Now let us join all those points. जब हम उन सारे points को join करते हैं, we get one curve. Let us call it as S. S is the supply curve. अभी आप ऑब्जर्व करो, ये जो सप्लाई कर्व है और डिमांड कर्व है, ये इंटरसेक्ट हो रहे इस पॉइंट पे। मैं रेड पॉइंट से उसको मार्क करता हूं, and that point of intersection we name it as point E. So आप ऑब्जर्व करो, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे डिमांड इज ग्रेटर देन, sorry, demand is equal to supply, and that point in economics shall be referred as, it shall be referred as इक्विलिब्रियम पॉइंट। और वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपको जो उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपको जो करस्पॉन्डिंग प्राइस मिला है इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड आपको जो करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी मिला है विल बी कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। So 3 is equilibrium price and 6 is equilibrium quantity. तो यहाँ पे हमने डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस स्टडी कर दिया। कोई डाउट है? अभी ध्यान दो, DD is the demand curve, SS is the supply curve, and E is the equilibrium point, P is the equilibrium price, and Q is the equilibrium quantity. अभी सपोज यहाँ पे अगर आपका डिमांड इंक्रीज हो गया, वी नो इंक्रीज इन डिमांड इज शोन बाय शिफ्टिंग डिमांड कर्व टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो हमको नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। एज्यूमिंग दैट सप्लाई रिमेन्स द सेम, प्राइस बढ़ के P1 हो जाएगा। और वैसे ही अगर आपका डिमांड कम हो गया D2 तो हमको नया इक्विलिब्रियम मिलेगा E2, नया प्राइस मिलेगा P2, नया क्वांटिटी मिलेगा Q2। आर यू गेटिंग दैट कंसेप्ट? कंसेप्ट समझ रहा है सबको? ये हो गया इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड, impact of change in demand on equilibrium price. Note down that diagram, important है ये।
डिमांड इंक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी इंक्रीज होगा, डिमांड डिक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी डिक्रीज होगा। Shall I go to the next part? This is impact of change in demand on equilibrium price. Shall I shift to the next part? Okay. Now, impact of change in supply. Say, D is the demand curve, S is the supply curve. We get an equilibrium point at point E where OP is the price and OQ is the quantity. अभी सप्लाई इंक्रीज हो गया, डिमांड रिमेनिंग द सेम, अगर सप्लाई इंक्रीज हो गया, शिफ्टिंग द सप्लाई कर्व टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, S1 हमको नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा E1, जहां पे करस्पॉन्डिंग प्राइस रहेगा P1, करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी होगा Q1। तो आप देखो सप्लाई इंक्रीज हो गया तो इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज हो गया। मैडम मैडम कितना इलायची लिए? बहुत ज्यादा। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। उसको क्या करते हो, डायरेक्ट डालते हो? एंड सप्लाई अगर डिक्रीज हो गया, S2 हमको नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा E2, जहां पे नया क्वांटिटी मिलेगा Q2। तो सप्लाई इंक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्लाइन होगा, सप्लाई डिक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज होगा। अभी देखो कुछ सिलेक्टेड सेलर्स ही होते हैं एट प्रेजेंट जिसके पास आपको मैंगोस मिलेंगे, बराबर है? अभी सब सब फ्रूट सेलर्स के पास मैंगो नहीं मिलता, ये सीजन खत्म होने को आ गया, सप्लाई हैज रिड्यूस, सप्लाई इज डिक्रीज। तो आप देखना that selected sellers would be selling the mangoes at considerably higher price क्योंकि सप्लाई कम हो गया है, there is decrease in supply. Is that okay? Now we go to the last part to be discussed today. मोनोपोली कंप्लीट नहीं हुआ है, मोनोपोली स्टार्ट ही नहीं हुआ है अभी, तो परफेक्ट कंपटीशन पे ही रह गए हम लोग।
Last part, corresponding changes in demand and supply. Say DD is the demand curve, SS is the supply curve. They are intersecting at point E, जहां पे OQ is the quantity and OP is the price. Point E is the equilibrium point. अभी हम क्या assume करते हैं कि यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हो गया, इसको मैं E नहीं देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ 1. तो अगर अभी आपका डिमांड इंक्रीज हो गया, सप्लाई भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो गया, और दूसरी पॉसिबिलिटी है सप्लाई डिक्रीज हो गया, डिमांड भी डिक्रीज हो गया. ये आपका हो गया S2 S2 D2 D2 S1 S1 D1 D1. तो अभी सपोज सप्लाई रिमेन्स द सेम, डिमांड इंक्रीज हो गया. मैं सबको अभी नंबर दे देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो आप मुझको लॉजिक बताओ. हाँ, आप मुझको आंसर्स देने वाले हो अभी. सपोज सप्लाई रिमेन्स द सेम, डिमांड इंक्रीज हो गया, तो मेरा इक्विलिब्रियम क्या रहेगा? सप्लाई रिमेन्स द सेम, डिमांड इंक्रीज हो गया, थ्री रहेगा. वेरी गुड, वेरी गुड, इट वुड बी 3. सप्लाई और डिमांड दोनों इंक्रीज हो गया, सप्लाई एंड डिमांड दोनों इंक्रीज हो गया, तो वेरी गुड 2. वेरी गुड. सप्लाई डिक्रीज हो गया तो डिमांड रिमेनिंग द सेम, सप्लाई डिक्रीज हो गया तो वेरी गुड 5. डिमांड एंड सप्लाई दोनों डिक्रीज हो गया तो गुड. लॉजिक समझ आ रहा है मतलब आप सबको? फाइन. अभी मुझको, मैं रिवर्स क्वेश्चन पूछता हूं आपको. रिवर्स, अगर हम पॉइंट नंबर 8 पे इक्विलिब्रियम पे है, व्हाट डज दैट इंडिकेट? हम पॉइंट 8 पे है इक्विलिब्रियम के लिए, तो वो क्या इंडिकेट करता है?
When we are at 0.8, what does that indicate? Point 8 पे increase in supply and decrease in demand. Very good, Bhavika Suri. Increase in supply and decrease in demand. समझ logic समझ रहे ना सबको? Is that logic clear about corresponding changes in demand and supply? Okay, अभी थोड़ा सा ऊपर हम जाते हैं वापस. मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स बताए थे और फीचर्स बता के मैंने आपको बोला था that perfect competition does not exist in reality. It is only theoretical in nature. अभी रियल लाइफ में मैंने आपको क्या बताया? रियल लाइफ में मार्केट के अंदर आपके पास सिर्फ पहले 4 फीचर्स होते हैं. Large number of buyers, large number of sellers, homogeneous product, free entry and exit. So what does Professor Alfred Marshall say? Professor Marshall say that the market in which only these 4 features are present, सारे 8 फीचर्स जिधर प्रेजेंट रहेंगे वो परफेक्ट कंपटीशन, और जिधर पहले 4 प्रेजेंट रहेंगे would be called as pure competition. Pure, pure competition. So in reality, perfect competition does not exist. Pure competition exists. In reality, pure competition exists, not perfect competition. Is that okay? Logic समझा? मतलब 2 मार्केट मैंने आज कंप्लीट कर दिए, perfect competition and pure competition. Is that clear to all of you? तो इसके पार्ट में कुछ डाउट है तो पूछो, else I'm ending up my lecture. Monopoly and types of monopoly हम अपने अगले लेक्चर में, that is tomorrow, I hope we will discuss it tomorrow.